آج ہم نے 22واں پارہ اور کچھ حصہ 23ویں پارے کا سنا ہے۔ سورہ احزاب کا جو بقیہ حصہ تھا وہ سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا جو حصہ 23ویں پارے میں ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو نرم لہجے میں بات مت کرو۔ جس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی تو وہ مائل ہوگا، اور ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو جس طرح دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والو، اور وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اللہ نے اپنے نبی کو ان کی عورتوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کی ہے، لیکن یہ بات ان کے ذریعے تمام مسلمان مومن عورتوں کے لیے ہے۔ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز اور مناسب نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے۔ بے شک یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر اس کے بعد جب تم انہیں طلاق دو، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تمہارا طلاق کا مرحلہ آ گیا، تو پھر ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔ ہاں، ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو اور اچھے طریقے سے انہیں آزاد کر دو۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو وہ مگر اس وقت جب کہ تمہیں اجازت دی جائے کسی کھانے پر، تو پہلے جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ کھانے کے پکنے کا انتظار شروع کر دو۔ جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے تو گھر میں داخل ہو، اور جب کھا لو تو فانتشروا، پھر نکل جاؤ، اور ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ شرماتا ہے تمہیں کہنے سے کہ اب تم جاؤ، یہ کہنے سے تمہیں شرماتا ہے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اے مسلمانوں، جب تم عورتوں سے کوئی بات کرنی ہو تو من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو، یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ اپنے اوپر موٹی چادریں لیا کریں، اور یہ بات زیادہ قریب ہے کہ انہیں وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ دراصل یہ پردے کا حکم آزاد عورتوں کو ہے، لونڈیوں کو نہیں ہے۔ اب جب پردہ کیا ہوا ہوگا تو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، اور جب معاشرے میں لونڈیاں جاتی تھیں لوگ انہیں تنگ کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے تو تنگ کرتے تھے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم پردہ کر کے نکلا کرو تاکہ تمہیں تنگ نہ کیا جائے۔ پہچان لی جاؤ کہ یہ پردے والی عورتیں آزاد عورتیں ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں، تاکہ تمہیں تنگ نہ کیا جائے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ جس دن ان کافروں کے چہرے، جہنمیوں کے چہرے
आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो उस वक़्त तकलीफ़ से कहेंगे या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, ए काश हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते, आज इस तकलीफ़ में ना होते। और वो कहेंगे ए हमारे रब, हम अपने सरदारों और वडेरों के पीछे लगे रहे, उन्होंने हमें रास्ते से गुमराह, असल रास्ते से गुमराह कर दिया। ऐ अल्लाह इन्हें डबल आज़ाब दे और इन पर बहुत बड़ी लानत भेज। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी बात किया करो। अल्लाह तुम्हारे काम ठीक कर देगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है तो यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। ये आयत निकाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर खुतबे में ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, निकाह के खुतबे में भी पढ़ते थे। आगे सूरह सबा है, फरमाया कि ए आले दाऊद शुक्र किया करो, और बहुत कम हैं जो मेरे बंदे शुक्र करते हैं, यानी मेरे बंदों में बहुत कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं। और काश आप देखते कि जब जालिम अपने रब के सामने खड़े होंगे, यर्जिउ बाज़ुहुम इला बाज़, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, और जो कमज़ोर लोग होंगे वो कह रहे होंगे उन लोगों से जो बड़े थे, वडेरे थे, मुतकब्बिर लोगों से कह रहे होंगे अगर तुम ना होते तो हम ईमान ले आते। और ये बड़े लोग कहेंगे कमज़ोर लोगों से, हमने तुम्हें कोई रोक रखा था हिदायत से? जब तुम्हारे पास हिदायत आई थी तो कबूल कर लेते। बल अंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम हो। और ये कमज़ोर लोग जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम अपने मकरो फरेब से रात दिन हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और उसके शरीक बनाएं। फिर ये लोग नदामत को छुपाएंगे जब अजाब को देखेंगे, और हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया, और ये बदला है इसका जो वो अमल किया करते थे। ए नबी, इनको बता दो बेशक मेरा रब रिस्क में फराखी करता है और रिस्क में तंगी करता है जिसके लिए चाहता है। जो भी तुम खर्च करते हो तो अल्लाह उसके बदले में तुम्हें दे देता है। वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आगे सूरह फातिर है, फरमाया लोगों अल्लाह की नेमतों को याद किया करो। क्या कोई है पैदा करने वाला अल्लाह के सिवा जो तुम्हें आसमान से और ज़मीन से रिज़्क दे? ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो? ऐ लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। कहीं ये दुनियावी ज़िंदगी और कहीं ये धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे। बेशक शैतान तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है, इसे दुश्मन समझो। ये हमेशा अपने साथियों को दावत देता है गुनाह की, ताकि वो जहन्नमी बन जाएं। फरमाया वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त आज़ाब है, और वो लोग जो ईमान लाए नेक आमाल किए उनके लिए बख्शिश है और अजर अजीम है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें मट्टी से फिर नुतफ़े से पैदा किया, फिर उसने तुम्हारी बीवियां बनाई, और जो भी कोई मुअन्नस हमल में होती है और तो अल्लाह, और या बच्चा जनती है तो अल्लाह के इल्म में वो होता है। और जिसको कोई उम्र मिल जाए, ज़्यादा उम्र मिल जाए या उम्र में कमी हो, ये सब अल्लाह ने अपनी किताब में लिख रखा है, और अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। वही है जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, हर एक चलता है अपने वक्त मुकर्रर पर। ये है तुम्हारा रब, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और ये जो जिन्हें तुम पुकारते हो वो ज़र्रा बराबर भी
कोई चीज़ के मालिक और इख्तियार नहीं रखते। अगर तुम इन्हें बुलाओ तो ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं देंगे, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का ये इनकार कर देंगे। इस जैसी खबर तुम्हें कोई नहीं देगा। ऐ लोगो, तुम मोहताज हो अल्लाह के, और अल्लाह ही गनी है और वही तारीफ वाला है। फरमाया ये नाबीना और बीना बराबर नहीं हो सकते, अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं हो सकते, धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है सुना सकता है, लेकिन ऐ नबी, आप जो कब्र वाले हैं उनको कभी नहीं सुना सकते। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो जहन्नम की आग में होंगे, और उनका काम भी तमाम नहीं होगा कि वो मर जाएं, ना उन पर अदाब की कोई तखफीफ यानी कमी होगी। और इसी तरह हम हर नाशुक्रे काफिर को बदला दिया करते हैं। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे आग में और कहेंगे रब्बना अखरिजना, ए हमारे रब यहाँ से हमें निकाल, नामल सालिहन, अब के हम नेक अमल करेंगे, गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल, वो अमल नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे। अल्लाह फरमाता है, इनको बेवकूफ़ों को क्या हमने उम्र नहीं दी थी, ज़िंदगी नहीं दी थी, उसमें वो नसीहत पकड़ते, और जो नसीहत पकड़ता है वही फ़ायदे में रहता है। वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे, अब चखो अज़ाब, इन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। बेशक अल्लाह गैब की बातें, आसमानों की भी और ज़मीन की, सब जानता है। बेशक वो सीनों की बातों को भी खूब जानता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि उसको कोई हरा दे, ना आसमानों में ना ज़मीन में कोई ऐसा है कि अल्लाह को हरा दे। इन्नहु काना अलीमन कदीरा, बेशक अल्लाह खूब इल्म रखने वाला और खूब कुदरत रखने वाला है। फरमाया कि अगर लोगों का मुआखज़ा अल्लाह हर बुराई, हर गलती पर करता, यानी हर गुनाह पर अगर अल्लाह मुआखज़ा करता तो मा तरका अला ज़हरिहा, इस ज़मीन पर कोई मिन दाब्बतिन, कोई जानदार बाकी ना बचता। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह मोहलत देता है एक वक़्त तक, और जब वो मोहलत आ जाती है फ़इन्नल्लाह काना बिइबादिही बसीरा, तो फिर अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। सूरह यासीन है आखिर में, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अफसोस इन बंदों पर कि उनके पास रसूल आया लेकिन ये उसका मजाक उड़ाते रहे, और कितनी ही बस्तियों वाले हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, अब वो इनके पास लौट कर नहीं आएंगे। फरमाया जब सूर में फूंका जाएगा तो ये सब लोग कब्रों से निकलकर दौड़ते हुए अपने रब की तरफ आएंगे और कहते होंगे, हाय हमारी हलाकत, ये हमें किसने उठा दिया हमारी मरकज़ों से, हम तो बड़े मज़े से सोए हुए थे। कहा जाएगा ये है वो वादा जो रहमान ने किया था और जो रसूलों ने किया था, सच्चा वादा है जो पूरा हो गया। फरमाया जो जन्नत वाले हैं वो मज़े में होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी, हाँ जी, सायों में होंगे और आला मसनदों पर बैठे, टेक लगाए बैठे होंगे, और फरमाया उनके लिए खाने के लिए फल होंगे, जो चाहेंगे उनके लिए उनको मिलेगा। और कहा जाएगा ए मुजरिमों तुम अलग हो जाओ, क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं की थी ए आदम के बेटो कि तुमने शैतान की इबादत नहीं करनी, ये तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है, मेरी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। फरमाया ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था, दाखिल हो जाओ अब इसमें, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम
कुफ्र किया करते थे। आज हम इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ बोल कर बताएंगे कि हमसे ये क्या काम लेते थे। वह तशहदु अर्जुलुहुम, इनकी टांगें बोल कर बताएंगी, गवाही देंगी कि ये किधर किधर जाते थे। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो किया करते थे इनके आज़ा बोल बोल कर बताएंगे। आखिर में सूरह यासीन के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने कभी गौर नहीं किया कि हमने उसको एक नुत्फे से पैदा किया है, फिर वो झगड़ालू बनता है और वाज़े झगड़ालू बन गया है, हमारे लिए मिसालें बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल गया है। क्या कहता है कि जी कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब ये बोसीदा हो जाएंगी। ए नबी, इनको कहो युहयी हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, वही उसे जिंदा करेगा जिसने उनको पहली मर्तबा पैदा किया था। और वो हर अपनी मखलूक को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह तो वो है जिसने एक सब्ज दरख्त से आग को निकाल दिया जिससे तुम आग जलाते हो, और वही है जो आसमानों को, ज़मीन को पैदा किया। वो इस बात पर भी कादिर है अन यखलुका मिसलहुम, कि इन जैसे लोगों को फिर पैदा कर दे। भला हाँ, क्यों नहीं, वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो तो बहुत अच्छे तरीके से पैदा करने वाला और खूब इल्म रखने वाला है। बेशक उसका मामला तो ये है, इज़ा अरादा शैयन, जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है, यकूलु लहू कुन, उसे कहता है हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। फसुब्हानल्लाहि बियदिहिल मलकूतु कुल्लि शै, पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है। व इलैहि तुरजऊन, तुम सब ने उसी की तरफ लौट के जाना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।